Thank you for the encouraging words. धन्यवाद भाई, तो आपने प्रोत्साहित भरे शब्द बोले। I would like to share something from Jeremiah chapter 29, यिर्मयाह चैप्टर 29 से मैं कुछ बोलना चाहूंगा। verse 11. वाक्य 11, God said to Jeremiah, प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, "Tell my people मेरे लोगों को बोलो that I know the plans that I go for you, कि मैं जानता हूँ कि मेरे योजनाएं क्या है तुम्हारे लिए, and plans for welfare." और वो अच्छी योजनाएं हैं। It's a wonderful verse. Though Jeremiah lived as such a backslidden, and the people gone such as in that condition, and Jeremiah, God said to Jeremiah, what a wonderful encouraging words. तो अपन लोग देखते हैं कि यिर्मयाह के समय पे जो यहूदी थे वो लोग बहुत ही गंदे जीवन जी रहे थे, प्रभु से बहुत दूर थे, इसके बावजूद प्रभु की योजनाएं उनके लिए अच्छे ही थे। And if you read Jeremiah, you will really, in few places you see the heart of God towards the people. और हम लोग अगर यिर्मयाह पढ़ेंगे तो हम लोग कई जगह पे देखेंगे कि प्रभु का मन उसके लोगों की ओर कैसा होता है। And one place is, I know, tell the people that I know the plans that I go for them. तो एक जगह पे प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मेरे योजनाएं मेरे लोगों के लिए। See, many people know one part of the gospel. For example, Jesus, when Jesus called Peter, he said, "Follow me." तो कई लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार के बस एक ही भाग जानते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु ने पतरस को बोला कि तुम मेरा पीछा करो। That includes everything. Just leave this world and just look my life. Everything is, there's one word, follow me. वो एक शब्द में बहुत सारी चीज शामिल हो जाते हैं, जैसे दुनिया को छोड़ दो और मेरा पीछा करो। But doesn't stop there. लेकिन वो वहीं पे रुकता नहीं। Jesus said, "I will make you fishers of men." प्रभु यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। That is the plan for his life. वो प्रभु का योजना है हमारे जीवन के लिए इस दुनिया में। So we really need to understand this both the side. That then you can say that I understood the full gospel. तो ये सुसमाचार के दोनों भाग हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग सुसमाचार को समझ चुके हैं। I hear the beautiful illustration from our brother. मैंने एक भाई से बहुत ही सुंदर उदाहरण सुना था इसके ऊपर What is the really you understood the full gospel? कि क्या उसका अर्थ होता है कि जब हम लोग सुसमाचार को पूरी तरीके से समझे। Imagine a ship sunk in deep water कल्पना करो many years ago. sunk into the sea. Shrunken the ship in the deep water. तो कल्पना करो एक बहुत ही बड़ा जहाज जो पानी में डूब चुका है, And somebody will just lift the ship from the deep water and bring out of the water. और सोचो किसी ने उस जहाज को पानी के अंदर से बाहर निकाल दिया। He said, "This is salvation." ये है मुक्ति पाना पाप से। But God doesn't stop there. लेकिन प्रभु बस वहीं पे नहीं रुकता। An amazing thing, He put that ship in the service. अद्भुत की बात यह है कि वो जहाज को वापस वो काम पे लगा देता है। And that is the same thing that God said to Jeremiah, "Tell them that I have the plan for them." और यही बात प्रभु ने यिर्मयाह को बोलने बोला था यहूदियों को कि मेरे पास भी तुम्हारे जीवन के लिए योजना है। So it is impossible for men. ये असंभव है हमारे लिए, लोगों के लिए। But imagine a shrunken ship for many years, bring out the ship and put it. That itself is a great, amazing. But they put it in the service. Oh, what a glorious thing. लेकिन सोचो जो व्यक्ति एक डूबे हुए जहाज को ऊपर लेके आ सकता है वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको वापस काम पे लगाना वो तो और भी बड़ी बात है। So that is the thing God wants to do with our और life. यही काम प्रभु हमारे जीवन में भी करना चाहते हैं। And if you really understand that, और एक बार हम लोग ये समझ जाएं, and you really seek for that, फिर हम लोग सच में उसकी खोज करें। because He says, verse 12 onwards, if you really understand that, it says, "Then you will call upon me and you will pray to me." और यहाँ पे लिखा है वाक्य 12 में कि एक बार तुम ये बात समझ जाओ फिर तुम मुझे पुकारोगे, मेरे नाम के मेरा पीछा करोगे। From the word then I understand it's connected with the previous verse. So if the people really understood that God has a plan for my life, they will really pray, and the next verse, they will really seek from their whole heart. तो यहाँ पे लिखा है कि एक बार लोग ये समझ जाए कि प्रभु के पास उनके जीवन के लिए एक योजना है, फिर लोग सच में प्रभु की ओर प्रार्थना करेंगे, उसकी खोज करेंगे। So many of us feel our Christian life is a little bit boring, and just we got a savior, salvation. No, God has a plan for each and every life. कई बार हमें लगता है कि हमारे मसीह जीवन में इसके आगे कुछ नहीं है, एक बार पाप से हमने मुक्ति पा लिया, माफी मांग लिया और कुछ नहीं है। नहीं, प्रभु के पास और भी उद्देश्य है तुम्हारे जीवन के लिए। Let me show you 2 verses in the Bible to tell you that really God has a plan, wonderful plan for our life. 2 वचन दिखाना चाहूंगा मैं बाइबल से, जिससे मालूम पड़ता है कि प्रभु के पास बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं हमारे जीवन के लिए। One is Genesis chapter 40. एक है उत्पत्ति चैप्टर 40, And we all well known the story of Joseph. और यूसुफ का जो कहानी है उससे हम सब वाकिफ हैं। Now Joseph revealed this to himself, to his brother, everything. यूसुफ Now ने अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ ने बता दिया अपने भाइयों को कि वो राजा है वहाँ पर, here is final words towards his brother. और उसके अंत के शब्द है उसके भाइयों की ओर। क्या बोलता है? Verse 5 onwards, he वाक्य says, 5 से हम लोग देखते हैं, "See, don't think all the things which happened in my life that you did." He तो says to his brothers. तो यूसुफ अपने भाइयों को ये बोलता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो ये मत सोचो कि तुमने किया है। He says, verse 5, "The God sent me before you to preserve the life." उसने ये बोला कि प्रभु ने स्वयं मुझे तुम्हारे पहले यहाँ पे भेजा था ताकि एक दिन तुम्हारा जान बच जाए। Verse 7, "God sent me." Verse 8, "The God
वाक्य 7 वाक्य 8 प्रभु ने मुझे भेजा है। हर जगह पे हर वाक्य में प्रभु ने मुझे भेजा है। See, imagine he understood in the end of his life. He says, "It was not you guys who put me all these troubles in my life." तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे यूसुफ ये समझ चुका था उसके पूरे उसके जीवन के अंत के दिन में कि जितना कुछ भी उसके जीवन में हुआ था वो सब प्रभु ने किया था। You are just instrument. You just acted to complete God's plan. भले उसके भाई लोग भी इस काम में शामिल थे, लेकिन वो लोग बस प्रभु के हाथ में उपकरण थे। Let me show you some other verse in Acts chapter 2. Like we heard, the day of Pentecost, the new covenant started. तो प्रेयर के काम में हम लोग नए करार के जीवन के बारे में देखेंगे चैप्टर 2। And let's see what Peter says about Jesus' life. और देखते हैं हम लोग कि अपोस्तल पतरस क्या बोलता है प्रभु यीशु के जीवन के बारे में। 23. वो बोलता है वाक्य 23 में, This man, he refers to Jesus. वो ये आदमी वो प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है। That he is speaking to all the Jewish वो people. जितने भी अभी यहूदी हैं उनसे बोल रहा है। This man you delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, that you nailed him on the cross. ये आदमी जिसको तुमने फंसाया और मार दिया क्रूस पर, ये तुमसे नहीं फंसाया गया है, लेकिन ये प्रभु के योजना के अनुसार ही ये हुआ है। See, the understanding of Jesus' life, the day of Pentecost from Peter, तो पेंटेकोस्ट के दिन में अपोस्तल पतरस के पास प्रभु यीशु का ये जीवन के समझ आ गया था। it was not all this. Jesus' life is full of predetermined plan. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु का जो जीवन था वो पहले से एक योजना के अनुसार चल रहा था। And that is the way God put us in the church or be born again. As soon as a man born again or woman born again, God has a beautiful plan for their life. उसी तरीके से जब कोई एक व्यक्ति एक नया जीवन पाता है, प्रभु यीशु के पास एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर योजना होता है उसके जीवन के लिए। I pray to Lord, please send the Holy Spirit to each one of you sitting here in front of them to shake their shoulder to say, Lord, I have a plan for you. मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा में हंस से हर एक व्यक्ति को यहाँ पे भर दे और वो हिल जाए और ये बोले कि हाँ, मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास एक योजना है। In Jesus' name, amen. प्रभु यीशु के नाम में आमीन।